نئی امیدوں نئی خواہشات کے ساتھ 2026 کو خوش آمدید۔ سال نو کا پہلا سورج نئی امیدوں نئی امنگوں کے ساتھ طلوع۔ نئے سال کے آغاز پر ملک بھر میں ہر طرف جشن کا سما۔ سال نو کو ویلکم کرنے کے لیے شہر شہر نگر نگر زبردست جشن۔ کراچی سے خیبر، بولان سے بلتستان تک رنگ و روشنی کا سیلاب امڈ آیا۔ کہیں چراغاں تو کہیں زبردست آتش بازی سے آسمان رنگی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے F9 پارک میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ کراچی میں سی ویو، پورٹ گرینڈ، باغ ابن قاسم پر نئے سال کا جشن۔ منچلے سڑکوں پر نکل آئے، خوب ہلا گلا، ناچ گانا۔ سکھر کے لینس ڈاؤن پل پر آتش بازی۔ لاہور میں نئے سال کا استقبال، لبرٹی مارکیٹ پر آتش بازی۔ ملتان میں گھنٹہ گھر، حیات آباد پشاور میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں سال نو کو جوش و جذبے کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ تمام اہل وطن کو ARY فیملی کی جانب سے نیا سال بہت مبارک۔ دعا ہے وطن عزیز اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سال خوش قسمت ثابت ہو۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سال نو پر مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی۔ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں، لیکن ہم بے بس بھی نہیں۔ اتحاد، استقامت، تخلیقی صلاحیت، یقین سے مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا، خدا کرے نئے سال کا ہر دن خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ 2025 کا سال دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ قوم بہادر افواج کے ساتھ مل کر دفاع وطن کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ سرحدوں پر پاک فوج کی موجودگی قوم کے اطمینان اور سلامتی کی ضمانت۔ اگلے محاذوں پر تعینات جوانوں کا وطن سے بے لوث محبت کا اظہار۔ لائن آف کنٹرول سے فوجی جوانوں کا نئے سال پر قوم کے نام پیغام۔ کہا، شدید سردی، برفانی موسم اور دشوار گزار جغرافیہ بھی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ گھروں سے دور برف میں مورچوں پر وطن عزیز کی حفاظت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ کسی بھی دشمن کو سرحد پار سے میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں نئے سال پر حکومت کا عوام کو تحفہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق 12 بجتے ہی ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ خوشی کی گھڑیاں غم میں بدلنے لگیں۔ سال نو کا جشن، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ۔ خواتین اور بچوں سمیت 28 افراد زخمی۔ چنیسر گوٹ، اعظم بستی، گولی مار، کورنگی نمبر 5، نیو سبزی منڈی، 5 اسٹار چورنگی، پاک کالونی، بڑا بورڈ، گلبہار میں ہوائی فائرنگ۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ میں ملوث 59 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ نئے سال پر پولیس نے ہوائی فائرنگ روکنے کے لیے ڈرون کا استعمال اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کرنے کا کہا تھا۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں نئے سال کا رنگا رنگ آغاز۔ چین کے شہر بیجنگ میں نئے سال کا جشن۔ کوالالمپور کے پیٹروناس ٹوئن ٹاورز پر شاندار آتش بازی۔ نیوزی لینڈ میں بھی شاندار آتش بازی اور رنگا رنگ جشن۔ آسٹریلیا میں نئے سال کی آمد پر سڈنی کا ہاربر برج روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ دلکش گیتوں سے سڈنی ہاربر کی فضا گونجتی رہی۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں 12 بجتے ہی 33 بار روایتی گھنٹی بجائی گئی۔ نئے سال کا جشن۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سال نو کا آغاز ہوتے ہی شاندار آتش بازی۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں سال نو کا پرجوش خیر مقدم۔ آتش بازی کا مظاہرہ۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی سال نو کے آغاز پر شاندار جشن۔ لندن میں نئے سال کے آغاز پر لندن آئی پر دل فریب آتش بازی۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر بھی گہما گہمی عروج پر رہی۔ متحدہ عرب امارات میں سال نو کا جشن۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ پر شاندار آتش بازی اور لائٹ شو۔ 2025 کا اختتام ہوتے ہی برج خلیفہ نیلے رنگ سے جگمگایا۔
साल 9 के तारीखी इस्तकबाल के लिए हजारों अफराद की बुर्ज खलीफा आमद। दुनिया भर से लाखों अफराद की ऑनलाइन नशरियात के जरिए जश्न में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। कहा, बातचीत और सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना नागुज़ीर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा साल दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अपने मजबूत अज़्म का अदा किया। भारतीय प्रॉक्सी अनासर बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम को सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएगी। ज़ाती और सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को मुस्तरद करना बलोचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। प्रोपेगेंडे के तोड़ और पायदार तरक्की में सिविल सोसाइटी का किरदार इंतहाई अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी की 18वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरुका से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और मुस्तकबिल में एक कलीदी हैसियत रखता है। विफाक और सूबाई हुकूमतों के अवामी फलाही और तरक्याती इक़दामात काबिल सत्ताइश हैं। नशिस्त का इख्तिताम सवाल और जवाब के तफसीली सेशन पर हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनी का बलोचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी और कुर्बानियों को खिराज अकीदत। सर्द मौसम में क्या बर्फ पिघलने लगी? पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का मुसाफा। अयाज सादिक और जयशंकर ने हाथ मिलाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। खैर मुकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। दोनों की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। इलामी के मुताबिक जयशंकर ने स्पीकर कौमी असेंबली से कहा कि वो उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं। मार्का हक में फतह के बाद पाक भारत रहनुमाओं की ये पहली मुलाकात है। पाक भारत जंग के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से मना किया गया था। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं। खत्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को कद्र की निगाह से देखते हैं। तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात को फरोग देंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। आला सतह के रवाबित से ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज़ जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा कर दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। स्पीकर अयाज सादिक ने खालिदा ज़िया के बेटे और बेटी से मुलाकात करके वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान को यमन में तशद्दुद की नई लहर पर गहरी तशवीश। यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। यमन में कशीदगी कम करने के लिए इलाकाई कोशिशों का खैर मकदम। मसले के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान किसी भी यमनी फरीक के यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालिफत करता है। यकतरफा इक़दामात से सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती और सलामती के अज़्म का अदा करता है। Two years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges, but we brought the country back on the track. It was time for an economic crusade. We took very difficult decisions. हमने मईशत को दोबारा दुरुस्त समत में डाल दिया। 2024 में इक़्तिदार संभाला तो चैलेंजेस का बखूबी इदराक था। गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की है।
PIA और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी कामयाबी से हुई। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमारी कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। कहा, FBR डिजिटाइजेशन के प्रोग्राम पर पहली बार अमली तौर पर काम हुआ। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज खुद बोल रहे हैं। अपने अहदाफ मुकम्मल आज़म के साथ हासिल करेंगे। नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म की कीमत पाकिस्तानी कौम मुद्दतों अदा करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। लिखा, इस ज्यादती के नतीजे में जो हुकूमत लाएगी उसने वतन अपने अजीज के साथ खिलवाड़ किया। साजिश करने वालों ने मुल्क को सालों के लिए गैर यकीनी कैफियत से दो चार कर दिया। तरक्की रोक दी। एक बददियानत शख्स को कौम की किस्मत का मालिक बना दिया। इस साजिश के जिम्मेदार को कीमत अदा करनी पड़ेगी। अल्लाह ने मेरे कायद को हर बार सुरखरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है। भयानक साजिश के जिम्मेदार दुनिया आखिरत में कीमत अदा करेंगे, इबरत का निशान बनेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए किसी भी किस्म के राबते की तरदीद कर दी। ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन कोई राब्ता नहीं हुआ। फिलहाल हुकूमत से राब्ता न किसी और फरीक से। चेयरमैन PTI के ARY ने उससे गुफ्तगू। कहा, बहुत हो गया, अब हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। 3 साल PTI के लिए मुश्किल रहे हैं। 2025 में जो उम्मीदें थी पूरी ना हुई। दुआ है 2026 बानी PTI की आज़ादी का साल हो। क्या असेंबली के गेट से कोई अनऑथराइज्ड पर्सन अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं यहाँ पर एक और नई नॉर्म ये नहीं चाहता था। जिस तरीके से यहाँ पर ये हुल्लड़बाजी की गई, मैं इस पर बड़ा सख्त नाराज हूँ। असेंबली में एक और नौमई नहीं चाहता था। पंजाब असेंबली में होने वाली हुल्लड़बाजी पर शदीद नाराज हूँ। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, असेंबली कवानीन के मुताबिक कोई गैर मुतल्लिका शख्स ऐवान में नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता, निज़ाम उनके हवाले कर दिया जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सदा याफ्ता शख्स की रिहाई सियासी मुज़ाकरात से मुमकिन नहीं। मशरूत मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। और टेस्ट क्रिकेट में नोमान अली की टॉप 3 में एंट्री। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का दूसरा नंबर। टेस्ट बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट सर फहरिस्त हैं। पाकिस्तान के साउथ शकील 1 दर्जा तरक्की के बाद 9वीं पोजीशन पर आ गए।